हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप। एंड द न्यूज़ इज great news on the ICC Men's World Cup 2023. Two games that have just concluded. The first one being Pakistan versus New Zealand. A miraculous win for Pakistan over there. But what a spectacular win for Pakistan. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. And of course then it is England that are down and completely out of this World Cup. But Australia that march on. Two games that have just gone down. But before we talk about that, I've got four outstanding gentlemen with me here in the pavilion. I'm joined by four former captains, four wonderful people who served the game of cricket and Pakistan really well. First up, I've got the young, the dynamic, one of the finest fielders, a great runner between the wickets, a fine player of spin bowling, captain Pakistan, and a lot of heroics under his belt. Shoaib Malik. Shoaib, good evening and assalamu alaikum. Good evening, walaikum salam, assalamu alaikum everyone. With that, I've got another gentleman here who was an integral part, in fact, the most important part of the Pakistani batting lineup whenever our batting lineup collapsed during his era. He's one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history and a fine gentleman. We've got Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, walaikum assalam, assalamu alaikum. और इनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ 2 straight thumbs, 8 crooked fingers, also former captain, a fantastic runner between the wickets, a great wicket keeper, and was known as the man of crisis, and we call him the silver fox of the pavilion. Moin Khan, good evening, assalamu alaikum. Good evening, walaikum assalam, Great to have you. Thank you. और दोस्तों, गल सुन के बानी जिन्होंने आज की इस शाम पाकिस्तान की जीत की खुशी में गल सुन मुकालमे का पूरा मुकम्मल जो नज्म है उसको फाइनल शेप दे दी आज, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे. इज द क्रिकेट रॉयल्टी, अनक्वेश्चनेबली द सुल्तान ऑफ स्विंग एंड द किंग ऑफ ऑल राउंडर्स, Wasim Akram. Wasim, assalamu alaikum. Good evening, assalamu alaikum everyone. Yeah, don't listen to him. Not listen to him. I mean, what? Yeah, I can't say it on TV that whole You share. are such an author. I have to give you full credit. लेकिन आपको पूरा आया किस जगह पे याद है? ये तो अब सीक्रेट है ना शेबी, ये मैं नहीं बता सकता. If I tell you, I have to kill you then. Yes. But you know, Please kill me. I have to see. I have to say that you have really developed from writing Sultan of Swing all the way to Gulsun. Yeah. It's quite a progression. Progression, yeah. If I wish I can't, the whole thing I can't say it on television, but that's something special, isn't it? मैं बड़ा impressed में. Thank you. You're welcome. And with that, let's take a look at the match summaries. First up, Pakistan versus New Zealand. दोस्तों, ये थी सूरत हाल. पाकिस्तान ने टॉस जीत कर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी, और क्या दावत थी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस दावत का भरपूर फायदा उठाया. 401 रन लगा दिए बोर्ड पे, and what looked like at half point of the game that this is something that is not going to be doable because it required a world record chase, 401 for 6. Now look at that, Ravindra there coming up with that outstanding century there. This young man, he's got a big future ahead of him, and you never know this. The kind of composure that he shows, he might be the captain of New Zealand one day, but we wish him all the best. Williamson there coming back into the side, scoring 95, just short of 5 for the bowling. A little worried, I would say. The Pakistani bowling card doesn't look that pleasurable, but you know what it was? It was Pakistan responding 200 for the loss of only 1 wicket. And Pakistan won that by DLS method. But look at that on the score column. It was the Fakhar Zaman show. The New Zealand bowlers had no answer to Fakhar Zaman's brilliance today. And of course, the captain also showing a lot of intent today. It was a different Babar Azam on song. And he knew that the chase was on. The chase was big. And they were in there to win it. And boy, did they win this one. So a big congratulations to the Pakistani fans. A big thank you to Fakhar Zaman, because he's given me bragging rights to say the following line, Fakhar hota hai, kha wo Zaman ho ya Pavilion mein. Well done, Fakhar Zaman, and Pakistan won that one by 21 runs in DLS. And the next one up, the second game, जो दूसरा मैच था आज का, ये था ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंग्लैंड. और आज उम्मीद ये थी कि इंग्लैंड शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, बट ऐसा ना हो सका. एक टाइम पर लग यूं रहा था कि इंग्लैंड बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त जो है तरीके से सेटअप किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, और छोटा टोटल होगा 240-50 के अंदर, मगर ऐसा ना हुआ. 286 लगाए, जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस रही टुवर्ड्स द टेल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज वोक्स विद 4 for 54, Rashid threw 2 wickets and Wood also picking up 2 for 70 in those 10 overs. In reply, well, the English batsmen
England, it's just not clicking. And what is sad about this is that this is the English team that so many teams around the world have fashioned their white ball cricket around. This is the same English squad that went from 2015 debacle to a 2019 World Championship, and they taught the world how to play white ball modern cricket. But look at where they are, bottom of the table and not looking good at all. Australia winning that one by 3 runs. और इसके साथ ही आइए नजर डाल लेते हैं पॉइंट टेबल के ऊपर, brought to you by Pepsi. Points table brought to you by Pepsi. All right, this is the ICC Men's Cricket World Cup 2023 points table. The two qualified sides sitting up for the semi-final. The first two sides, India and South Africa. India undefeated, 7 games, 7 wins, 14 points. South Africa, 7 games, 6 wins, 1 defeat, 12 points. Now, the position is open. This is it. This is where the game gets really, really interesting. Australia and New Zealand sitting on the 3rd and 4th position. New Zealand must be very worried because they, just like Pakistan, have 8 games, 4 wins and 4 losses. They do have a better run rate than Pakistan, but Pakistan sits right on the 5th spot. Let's not forget, there is Afghanistan that has 3 games in hand to go. And 2 games in hand to go. Pakistan and New Zealand both have 1 game to go, and Afghanistan had 2 games to go. Sri Lanka has 2 games to go. Netherlands also 2 games to go. Bangladesh also 2 games to go. England also has 2 games to go. But England, boy, man, that's just really, really depressing if I was an Indian fan. And that's how the points table is. Wasim, let me just bring this to you, the Australia versus England game first yes. up. Well, there's not much to say. जैसे मैंने पहले भी कभी comments में बोला कि पूरी दुनिया ने अपनी white ball cricket fashion की around how England played their white ball cricket. And it looks like it's an end of an era and maybe now time to go back to the drawing board and start a new chapter. Reset button, I agree with you. It's a sad day for England cricket. Every cricket pundit, every cricket lover, not just in Pakistan, India ले लें, subcontinent ले लें, Australia, England, New Zealand, सब ने कहा था कि England one of the favorites, the way they play white ball cricket. And I think in the process in last 4 years इन्होंने दुनिया को सिखाया है white ball कैसे खेलनी है, खुद भूल गए हैं. And because इन्होंने one day cricket को serious नहीं लिया, main players जिसने सबसे ज़्यादा one day खेले हैं 32 plus in last year or two, Jason Roy, उसको इन्होंने pick नहीं किया. And then quite a few of them, मैंने last time भी बताया था कि किसी ने 24 one day miss किए हैं, किसी ने 28 one day miss किए हैं, किसी ने 23 one day miss किए हैं. नई टीमें खिलाई हैं, वो लड़के लेके नहीं आए. जो यंग प्लेयर था, जो फ्यूचर है इंग्लैंड क्रिकेट का, हैरी ब्रुक्स, वो बाहर बैठा रहा है. रिटायर क्रिकेटर को ज़बरदस्ती मिन्नतें करके उसको लेके आए हैं कि प्लीज़ कम फॉर दिस वर्ल्ड कप. बेन स्टोक्स, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, इनफैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. बट अगर इसका दिल ही नहीं है यहाँ पे खेलने का वन डे क्रिकेट, तो क्यों ज़बरदस्ती लाए हैं? उसका रिजल्ट देखा और दे आर राइट एट द बॉटम. लाइक आई सेड, अ सैड डे फॉर इंग्लिश क्रिकेट एट द मोमेंट बिकॉज दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स एंड they themselves to blame even in this game. At one stage they were 6 for 123, 223 for 6 Australia were. Yeah. And the last 2 wickets scored 63. There are a lot of runs. यही अगर 240 250 पे आउट किया होता इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, तो शायद पकड़ लेते. क्लोज आए थे ये, बट इट वाज बाय द टाइम एक 150 बाय बेन स्टोक्स और उसके बाद लिटिल बिट ऑफ एफर्ट फ्रॉम मोइन अली एंड देन फिर वो हाथ उठा दिए. ले जाओ भाई. It looked like stroke play was very difficult for English batsmen. क्या विकेट के अंदर कोई चीज थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी या what was going on there? थोड़ा सा स्लो पिच ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था. इवनिंग में तो बेहतर खेल रहा था. फर्स्ट टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, बट जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, फिर जॉनी बेस्टो स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर. जो रूट पहले स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा वर्ल्ड कप का, उसके बाद बिल्कुल ही वो क्वाइट हो गया, कोई रन्स नहीं आ रहे उनकी तरफ से. और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो रूट का इनकी टीम में. वो बाकी सारे स्ट्रोक मेकर हैं, उनका रोल है टू जस्ट प्ले थ्रू द इनिंग. वो रन नहीं कर रहे तो प्रेशर बाकियों पे आ रहा है, वो बाकी रुकते नहीं है, बाकी खुला खेलते हैं, विकटें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं. एंड देन आपकी 5 विकटें 100 से पहले गिरी होती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई 250 या उससे ऊपर का स्कोर करना. एडम जैम्पा का जब शुरुआत हुई थी इस वर्ल्ड कप में, बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे थे. गेंद जो था विकेटों में नहीं गिर रहा था, मार पड़ रही थी, वो कर रही थी. बट व्हाट अ कमबैक बाय एडम जैम्पा. ही इज नाउ द लीडिंग विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड कप. ही इज, आई थिंक, जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, लाइक विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, एंड बहुत नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज में. सबसे जो बेहतर चीज़ के विकेटें ले रहे हैं. जब विकेट लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेयर हो जाता है, देन यू कैन ट्राई योर वेरिएशंस. और विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं. टोटल
आज इंग्लैंड की जिस तरह बैटिंग थी, मेरा ख्याल है थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल यहाँ पे मुझे बैट्समैन नज़र आए। सेट भी हुए बैट्समैन, पार्टनरशिप भी क्रिएट करने की कोशिश की, बट एट दी एंड जिन बॉल्स पे जिस हिट्स पे मारते हुए वो आउट हुए, आई थिंक वो एक नेचुरली फिर बॉलर्स को एज मिल जाता है उस पर, फिर बॉलर्स आके फुल अपनी ट्राई करते हैं विकेट्स लेने की। यही एक चीज़ नज़र आई इंग्लैंड की बैटिंग में, जो कि कैपिटलाइज की ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने, स्पेशली जैम्पा ने जो 3 विकेट। Outstanding performance there. Talk about Australian batting now. टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर फायर कर जाता है, मिडिल ऑर्डर भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो टेल जो है वो भी वैग करती है ठीक ठाक, और आज फिर टेल ने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं, because that's the margin that you can see there in the defeat. Of course, I guess if we look at their whole squad, उनमें डेप्थ है व्हेन इट कम्स डाउन टू बैटिंग। इवन जब पैट कमिंग्स आते हैं बैटिंग करने के लिए एज अ लीडर, यू सी दैट उसको करना है कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे अपनी टीम को लेके जाना है कि जहाँ पे वो डिफेंड कर सकें, और उनके पास अटैक है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, एज मोइन भाई ऑल्सो मैंशनड अबाउट एडम जैम्पा। जब वो फॉर्म में आए हैं तो उन्होंने क्या किया, अब उनके 4 बॉलर्स ऐसे हैं कि दे आर अटैकिंग बॉलर्स, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, जॉश हेजलवुड हैं, और पैट कमिंग्स और एडम जैम्पा भी आ गए हैं। तो अगर ऊपर से विकेट्स आती हैं तो मिडिल से भी आ रही हैं अब विकेट्स। 5th बॉलर बिल्कुल वो उनका जो है ना, वो अब बीच में से दे कैन गेट अवे विद दीज 4, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन हो गया। दूसरा, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, वो ऑफ कोर्स दे आर द फिटेस्ट। तो एक चीज़ उनमें जो अभी भी नज़र आ रही है वो ये है कि जिस तरह का वो मैच खेलना चाह रहे हैं, जिसमें 350 हो, 400 के पास जाए, वो नहीं हो पा रहा। अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल में वो थोड़ा क्लैप्स कर जाते हैं, या अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल में से रन्स आते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ टारगेट नहीं पहुँच सकता। लेकिन यह है कि ओवरऑल दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और वो किसी भी टफ टाइम दे सकते हैं आगे। All right, with that, folks, we're going to take a break here in the Pavilion, but when we come back, we're going to talk about the Fakhar-e-Alam show that we saw. Don't go away, keep watching A Sports, the ARY Zap app, and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द ARY Zap app, our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and the news is we had a double header today, and the first match Pakistan winning that one because of the Duckworth Lewis method, and the second one Australia defeating England, और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं अब। Let's talk about the New Zealand Pakistan game. With me in the Pavilion I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. Wasim, let me start with you. New Zealand came out, we put them into bat. Did we, and immediately हमें 5वें 6ठे ओवर में फास्ट बॉलर्स हटा के हम 4 सीमर्स देकर गए थे, और फिर स्पिनर भी लाना पड़ गया था। You think that was a good call on our part? If you want to be a real critical, maybe you can, but in the end, Pakistan team won the game. And I suppose they had a plan. उन्होंने प्लान किया होगा कि हम पहले टॉस जीतेंगे तो हम बॉलिंग करेंगे। वेदर फोरकास्ट भी देखी होगी उन्होंने, आई सपोज रियलाइजिंग इट कि रेन अफेक्टेड गेम हो सकती है। बैटिंग सेकंड, हमें पता होगा कि कितना टोटल हमने चेस करना है, कितने ओवर में, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो श्योरली हमने 400 तो नहीं सोचा होगा कि हम 400 तो नहीं था सोचा, बट दे प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट। आई मीन वी बोल्ड बैडली एट टाइम्स। आई मीन pick of the bowlers of Pakistan is Mohammad Wasim, who's improving. That's his 3rd game in a row. पहली में इम्प्रूव किया, दूसरी में किया, और इसमें आके प्रॉपर बॉलर की तरह उसने जब सबको मार पड़ी है 3 विकेटें लिए, इसने 60 रन दे। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान बॉलिंग में। और Ifti bowled well. Ifti is a part-timer, 8 overs, 55 for 1. He did his job. And over and all, Shaheen went for lots and lots of runs, 90 in his 10. Hassan Ali went for 82 in his 10. So obviously फिर इतने आपके 2 मेन बॉलर को और तीसरे को हारिस रऊफ को भी 85 हुआ है 10 ओवरों में, तो 400 तो होना ही है ना यार। that's a lot of... सो द प्रॉब्लम अभी जो हमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में जो मुझे नज़र आई है, आई डोंट नो बाकी एक्सपर्ट्स का क्या अपना ओपिनियन है, कि बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग। अब फास्ट बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग। मेन स्पिनर खिलाए नहीं हमने पार्ट टाइम खिलाए हैं, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। तक 4 बॉलर खिला लिए, फिर आखिरी मैंने पहले ही कहा था कि 4 फास्ट बॉलर तो आप खिला लेंगे, ओवर रेट कौन देखेगा। मेरा ताया आखिरी 3 ओवर आपने एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके आए हैं, तो वो फड़कास ही पड़नी है फिर। तो जब फास्ट बॉलर तब खिलाओ जब एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सिंक, ताकि वो जो ओवर ख़त्म करें, वापस पहुंचे, ख़त्म करें, चेंज जल्दी हो इन बिटवीन, ऐसी ओवर टाइम बचता है ना आपका। मिसबा, शाहीन शाह अफरीदी
टुडे उन्होंने जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट रन्स गिवन बाय पाकिस्तानी बॉलर इन अ वर्ल्ड कप मैच, वो उन्होंने ही सेट अ न्यू रिकॉर्ड, 90 रन जो उन्होंने दिए. एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट हिम एंड हसन अली कि जी पेस जो है दोनों का कम लग रहा है, आर दे स्ट्रगलिंग विद इंजरी, आर दे वो, एंड we keep seeing this thing, and today Shaheen looked really off color. I mean one would expect आज बड़ा मैच है, जो कि आज डू एंड डाई वाला मैच था, और वो लग यूँ रहा था जब वो वार्म अप कर रहे थे पहला गेंद करने से पहले, वो स्ट्रेचिंग भी कर रहे थे, बड़ा वो कर रहे थे, बट it just didn't look like he was there. What's any idea what's going on there? देखिए नज़र आ रहा है वो चीज़ तो चलें जो भी है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि हम अभी भी प्लान ए पे हैं, जो हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि अर्ली ऑन नए बॉल पे विकेट मिल जाए, ब्रेक थ्रूज आ जाएं, फिर हम उसको कंट्रोल करें. अगर दूसरी टीम ऊपर से स्टार्ट अच्छा ले लेती है और काउंटर अटैक करती है तो देन वो जो प्लान बी है, सी है कि फील्डिंग में कोई चेंज करना है, लेंथ चेंज करनी है, अब किस चीज़ पे जाएंगे, वो नहीं है, वो मिसिंग है. और आज भी ऐसे जब एक दो मार पड़नी शुरू हुई है शाहीन को भी और बाकी जितने भी बॉलर जो भी आया, तो वो कुछ समझ नहीं आई कि वो उसी फ्लो में रन्स बनते गए हैं और करते करते 400 रन हो गए हैं. मतलब कहीं पे भी हमें ये नज़र नहीं आया कि हम थोड़ा सा उस गेम प्लान को चेंज करें. और बहुत ज़बरदस्त जैसे वसीम भाई ने बात की कि उन्होंने बैटिंग आउटस्टैंडिंग की, और ऐसी सिचुएशन में जब पिच इस तरह स्लो होता है नॉर्मली टीमें टाइम लेती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने फ़ौरन ही दो ओवरों के बाद ही उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया और दे थॉट के करना है, हमने बड़ा स्कोर ही करना है, और उसके बाद उन्होंने सेटल डाउन नहीं होने दिया. तो मुसलसल अगर आप देखें कि एक ही आपको लेंथ नज़र आ रही है, लेंथ बॉल नज़र आ रही है. जब छोटी ग्राउंड में आप होते हैं और बाउंड्रीज छोटी हैं और पिच से भी कोई ख़ास हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर मेरे ख्याल में बचत के चांसेस वही हैं. आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स पे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करते हैं. के पॉइंट का फील्डर पीछे कर मिस्टेक की हमारी बॉलिंग में जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे. ऑस्ट्रेलिया वाला अगर आपको मैच हो सेम वेन्यू पे, हम लोगों ने डेथ ओवर जब इस तरह मार पड़नी शुरू हो जाए तो अब आपको पता है कि 400 नहीं होने देना, अब अगली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली गई है, तो आपकी डेथ बॉलिंग जो है, जो हम आखिरी 10 ओवरों में करते हैं, वो 30 ओवरों से ही शुरू हो जाती है. आप फील्डिंग अगर हल्का सा रिवर्स स्विंग शुरू हुआ था, राइट हैंडर्स पे बॉल अंदर आ रहा था, अब थर्ड मैन ऊपर लेके आते, मिड ऑन पीछे ले जाते या मिड विकेट पीछे ले जाते हैं. उन्होंने क्या किया है, रिवर्स शुरू हुआ है, उन्होंने एक दो शॉट्स उठा के मारे हैं क्योंकि पीछे फील्डर्स नहीं थे, तो वो बॉलर ने अपनी लेंथ चेंज कर दी. तो डे गेम में जब बॉल जो है वो स्लो होता है, बॉल सॉफ्ट होता है, उसके बाद स्लो होता है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जो है ना, अब देखें, अब आप अच्छे पिच पे खेल रहे हैं, अब आपने ये करना है कि यार हम कट डाउन कैसे करेंगे जिस पे मैच जाना है, वो जो 25-30 रन 50 रन पे जाना है, वो इसी तरह कट डाउन हो सकता है कि अगर आप डेथ ओवर्स जो है वो फील्ड विद राइट फील्ड प्लेसमेंट वो शुरू करते. सेम मिस्टेक की आज हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये 400 रन बने. Yeah, well, it was a huge total. But let's talk about Wasim. Wasim looked really good. I mean, again, उन्होंने वसीम जूनियर ने आके जो है ना दोबारा बताया कि look, you know, मुझे बाहर रखा हुआ था, but look, I can deliver the goods on a given day. I think एक तो इतने अर्से से मैच नहीं करते, नेचुरली एक एनर्जी नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग के अंदर, जिस तरह रिदम से भाग रहे, एक रन अप नज़र आ रहा है उनका, फुल पूरा जोर लगा के बॉल कर रहे हैं, बॉडी लग रही है उनकी, जैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं. यही वजह है कि उनको थोड़ा सा रिवर्स भी मिल रहा है ज़्यादा औरों के मुकाबले में, तो यही वजह मुझे नज़र आई है बेसिकली इनके अंदर. और कोशिश की है, ये ज़्यादातर गेंदें जो है क्लोज टू द स्टम्प्स कर रहे हैं. आप ये देखें करीब से बॉल जा रही है बैट्समैन के, तो ये लेंथ बहुत ही आइडियल लाइन, एंड इवन द लेंथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड. ये तो थोड़े लकीर है, लेकिन गेंद रिवर्स लेट स्विंग हुआ है, पैड से लग के बोल्ड हुआ है. आई थिंक ये पेस से बीट हुए हैं. पेस इस रिदम की वजह से ही पेस मुझे लगता है कि आई है इनकी, जो पीछे मैचेस नहीं खेले, फ्रेश फुल strength के साथ. Do we have time? Can I explain the scenario now for the qualifier, or you want to explain? Yeah, we can. We were going to talk about it after we reviewed the match. But if you want to share the whatever, scenario, go with your flow. सिर्फ ये कि लोगों को हम ये बता सकते हैं, इस वक्त मैं ये बता सकता हूँ कि scenario is wide open for Pakistan. It's not over, and Wasim will explain that just after we review through the match. Let's go to Rachin Ravindra. I was going to come to you anyways, Wasim. Is that this young man is so amazing. Phenomenal play.
yeah, phenomenal player. Came through the ranks, came through proper channel under 13, under 16, under 19, and now playing for Australia on regular basis, getting runs, got incredible shots in his armory, straight bat, not a slogger at all. Look at the shots he played, you know, offside, leg side, against the spin, nikal ke, khade, pull shot. So yeah, and he's only 22, 23. And sensible cricketer, you know, calm while he's batting, in control, balance is very much there, and he plays equally well to spin. And look at these shots, these are amazing shots, big shots too. So very talented individual, very impressive. I think वो कहेंगे इसको कि जो young player अगर वर्ल्ड कप में नजर आया अभी तक ये रचिन एक चीज़ और है वसीम भाई, बड़ी मजे की चीज़ है कि ही इज मेंटली सो स्ट्रॉन्ग। मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैच में 3 नंबर खिलाया, 100 बनाया, अगले मैच में कप्तान वापस आया, ओपन कराया, फिर कैप्टन इंजर्ड हुआ, फिर 3 पे लेके गए, फिर उसके बाद कैप्टन आया, फिर ओपन कराई और 100 बना दिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ यंगस्टर डोंट थिंक अबाउट कि किस नंबर पे रन्स बनाए हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। और वो उसके केस में देखें कि हिज प्रोसेस इज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब आप सिर्फ कंट्रोलेबल को ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ऑल्सो मिसबा वेरी स्टेडी हेड एंड हैंड स्पीड बड़ी रिमार्केबल इनकी, अचानक ट्रिगर करते हैं, यूँ लगता है कि जैसे अचानक लॉन्च हुए हैं टू द शॉट, ही लुक्स एट इट, चेक्स हिमसेल्फ एंड देन हिट्स। बिल्कुल, शॉट सिलेक्शन भी अगर आप देखें और फ्रंट फुट पे जैसे नॉर्मली हमारे एशियन प्लेयर्स प्रेस करते हैं और उसके बाद वहीं से वो बैक फुट के शॉट भी खेलते हैं और आगे तो गेंद कर नहीं सकते। ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कवर ड्राइव मारते हैं, सीधी शॉट मारते हैं और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, पूरा यूटिलाइज़ करते हैं क्रीज की डेप्थ को, इवन एक्स्ट्रा कवर मारते हैं, फिर कट शॉट भी कंट्रोल करते हैं। स्वीपर खड़ा है तो उसकी राइट लेफ़्ट दोनों तरफ खेलते हैं उस शॉट को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बैक फुट पे जाके जो मिड विकेट पे मारते हैं, नॉर्मली जो बाहर के प्लेयर हैं वो लंच करते हैं तो फ्रंट फुट पे कई दफ़ा फंस जाते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं जाता है, ये इक्वली गुड ऑन बैक फुट एंड फ्रंट फुट अगेंस्ट स्पिनर्स, दैट्स वाई सो फ्लुएंट। इवन इंडिया में आके रन्स करना ये आसान नहीं है। We're talking about coming to India and ये इनका पिच मैप आपको नज़र आ रहा है रविंद्रा का, and you know the thing about Rachin Ravindra, ये एक तरीके से उनका ancestral ground है, because his father used to play club cricket here in Bengaluru before he migrated to New Zealand, so this was a very special innings for him there. शुक्र है तूने ये नहीं कह दिया कि उसके बाप की मुर्गी होती थी, वो वहाँ रहती थी। बड़ी खबर देती है सानू, बड़ी खबर देती है, उसके बाप वहाँ क्लब क्रिकेट में खेलते थे। But good to hear. Yeah, it is. It's special. It makes it a special innings for, of course for it the does. young man. And all. पहले वो देख सारी मुर्गी थी ऐसी भी तैसी। Oh yeah, of course it is. It is, of course it is. I realize I've My just. question was, मेरा उसमें ये था कि was it relevant? फखर भाई से अभी तो वो सीट भी होगी जहाँ पे बैठते थे। Just giving a little bit of backup history on the भाई game. उड़ा नाम है। हाँ जी, वो आया ना गलसुन आया है, बिल्कुल बड़ी जोर से आया था गलसुन। Talking about let's talk about Kane Williamson now. Moin, he also came back from an injury और सेंचुरी होते होते रह गई आज। आप एक फजूल शॉट कहूँगा मैं तो उसको उस सिचुएशन में। आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जिस वक्त रचिन और ये दोनों खेल रहे थे, इतनी बड़ी पार्टनरशिप की थी वहाँ पे, कहीं भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। केन विलियमसन भी थ्रू आउट सिंगल्स भी ले रहे थे, बाउंड्रीज भी जहाँ इनको बॉलें मिली हैं वहाँ ईजीली एग्जीक्यूट किए और बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स किए। यू नो आप देखें कहीं भी कोई रैश शॉट नज़र नहीं आया और कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 3-4 मैच मिस करने के बाद आ रहे हैं। यू नो एक थोड़ा सा प्लेयर के अंदर होता है, थोड़ा सा शॉट मारते हुए हेजिटेट करते हैं, बट ही वाज कमांडिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ी टाइम इनिंग न्यूजीलैंड को ऑफकोर्स चाहिए भी थी, जिस तरह बॉलिंग में इंजरीज चल रही थी। ये कितनी इनक्रेडिबल बात है कि 3 मैच इंजर रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, अंगूठा टूटा, तो उसके बावजूद आया तो लग रहा है सेट आया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसको बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स। अरे वसीम में मेंटली बहुत टफ रहता है और नज़र इसके एटीट्यूड से आता है। जिस वक्त बैटिंग करने आता है वेरी कूल काम नज़र आता है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेता किसी भी किस्म का
और लकी ये भी था कि रचिन साथ खेल रहा था, वो भी दूसरे एंड से बाउंड्रीज मारे जा रहा था, तो वो एक प्रेशर जो था वो रिलीज हो रहा था इसके ऊपर से। और आज उनकी इनिंग देख लें कि उन्होंने स्ट्राइक रेट भी 120.25 का स्ट्राइक रेट, 79 बॉल्स पे 95। नॉर्मली वो टाइम लेते हैं, लेकिन आज उनको अंदाज़ा हो गया था। और मुझे लगता है थोड़ा सा अंदाज़ा उनको ये भी था कि जो बॉलिंग हमने खिलाई है उस हिसाब से रन करने। बात भी करनी है कि such a good side, thinking cricketers and playing with two fast bowlers on a ground जहाँ छोटी ग्राउंड है, यहाँ 65 की बाउंड्री की मीटर है। मेरा हाल है उसी में वो मार्जिन देखा होगा कि 35 ओवर्स में पाकिस्तान टीम को चेज नहीं करने देना और दूसरा आगे 83 रन्स, तो उन्होंने कहा होगा ज़्यादा बैट्समैन डाल दो, इतने रन लगा दो, हम कहीं ना कहीं संभालेंगे। उन्होंने की पता सी उत्थे बारिश है बेंगलुरु श्रीलंका वाले मैच में चांसेस है, that chance is very much there. Right, with that we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports and the Airwise app our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and we're talking about the Pakistan-New Zealand match जो पाकिस्तान जीता, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पाकिस्तान को मिले, इसके साथ ही पाकिस्तान पॉइंट टेबल में आगे बढ़ता जा रहा है। But let's talk about now, we were talking ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। 401 रन का टारगेट दिया आज न्यूजीलैंड ने, और लग यूँ रहा था एट हाफ टाइम कि दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टारगेट टू चेस, बट Pakistan victorious in the end. Wasim, what an innings there by Fakhar-e-Alam. In the end, after जब पहली इनिंग ख़त्म हुई है, for me it was Fakhar-e-Alam versus New Zealand. He didn't look like Pakistan versus New Zealand. He took the game away, clean hitting, 11 sixes, and I think when he started going, New Zealand didn't know what hit them. They were all over the place. They first of all Misbah और शोएब ने कहा भी है कि एक तो उन्होंने बॉलिंग जो 11 बॉलिंग जो प्लेयर बॉलर्स थे वो ठीक नहीं खिलाए, दो फास्ट बॉलर खिलाए सिर्फ इस पिच पे, स्मॉल स्पिनर्स को खिला दिया, एंड फखर टुक द एडवांटेज। एंड बाबर, आई सपोज लॉट ऑफ पीपल माइट क्रिटिसाइज हिम, बट आई थिंक they were kind of a plan. He was the aggressor, Fakhar, and Babar was just to rotate the strike, give him the strike, and it worked. It worked in the end. And we won the game 225 was, I think Pakistan ने पहली दफा किया होगा 50 ओवर के मैच में इतना बड़ा स्कोर। Less dot balls today, he had a better strike rate today, showed much more intent. In I fact, think situation के मुताबिक it was a perfect batting from our captain. It was. Yeah. And what a Fakhar-e-Alam innings that was. Misbah, any change you see in Fakhar-e-Alam's batting stance and his technique? What has propelled him all of a sudden just like that? You know, he's come from a bad patch into this glorious form all of a sudden. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़खर का कॉन्फिडेंस है। जब उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है, मेरे ख्याल पिछली इनिंग में वो जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, सोचा है उसने, प्रैक्टिस की है, एक्सेस बैगेज उतारा है, उसके बाद जब चांस 2 ओपनर को मिल गया और देन वापस आया है, नाउ वो यू कैन क्लियरली सी, क्लियर है बिल्कुल, उसका हेड क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फ़खर को हम सब जानते हैं कि जब फ़खर इस किस्म की फॉर्म में आता है और इस किस्म के माइंडसेट में आता है तो ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। ये ऐसा प्लेयर है कि ये 4-4, 5-5 छक्के खड़े होके मार सकता है बड़े आराम से, बिल्कुल। और स्पेशली फिर ऐसी ग्राउंड जब ऐसा शुरू होता है, PSL में भी हमने देखा है और पहले भी जो फ़खर ने 200 किए हैं और बड़े बड़े रन वनडे में किए हैं, इस किस्म की हिटिंग, इस किस्म की पावर शायद और किसी के पास नहीं है पाकिस्तान टीम में। और ऐसी ग्राउंड फिर मिल जाए तो आई थिंक जितनी भी तारीफ़ करें कम है। द वे ही टुक द गेम, सिंपली उसने कहा कि हट जाओ बस, मैं अकेले ही हूँ आज। So there's one thing, Shoaib, he's sitting deep. जो उनका स्टांस है, एक तो बैकलिफ्ट है, बल्ला ऊपर रखते हैं। उस आप लोग ये बता रहे थे जो डाउट की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो भी बैट यहाँ से लेकर आते हैं लेकिन उनका जिस्म से दूर होता है and all that. He tends to keep it very close to his body and he tends to keep it very high and stays low. What's going on there? Is he setting him up to hit big shots? Of course, जैसे उनका स्ट्राइक रेट होता है जिस दिन ही स्कोर्स रन्स, तो उनका हाई बैकलिफ्ट है और वो ही इज़ कमिंग आफ्टर द बॉलर। जब आप इतनी हाई बैकलिफ्ट से आते हैं, ये देखें, और ये देखें फ्लो में आता है बैट, ऐसा नहीं होता कि 2 झटकों में आ रहा है, एक ही फ्लो में जा रहा है। और ये भी शॉट था, ये उनका हाई बैकलिफ्ट की वजह से वो चला गया क्योंकि फ्लो में बैट आ रहा था। तो इनमें सबसे जो
मज़े की चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी भी टीम से मैच खेलेंगे ऑन अ गुड सरफेस, जिस पे जैसे आज हुआ मैच, एनीथिंग अबव 370, तो फ़खर जमान एंड इफ्तिखार इनका बहुत रोल आ जाता है उस मैच के अंदर। जब आप 350 वाला मैच खेल रहे हैं अच्छी विकेट पे, या 340 वाला मैच खेल रहे हैं, फिर आपके पास बाबर, रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इनका बहुत सारा जो है वो रोल आ जाता है। बट आज वाला जो मैच था, आई थिंक जितनी भी तारीफ़ की जाए फ़खर जमान की उतनी कम है। मोइन 1200 गेंदों तक पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हमारा चल रहा था, और उसके बाद अचानक फ़खर जमान आए और 2 मैचेस के अंदर छक्कों की बारिश कर दी है। इंटेंट, चूंकि ये तो आप भी बैट पैच से रहे थे, इंटेंट का फ़र्क है, कॉन्फिडेंस का फ़र्क, जिस तरह मिसबा कह रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा इस वक्त फेयर अप कर रहा है, क्या चीज़ है, व्हाट मेक्स अ बैट्समैन फील सो कॉन्फिडेंट कि मैं सबको मारूंगा? कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपको चैलेंज लेना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हमने देखा था कि बहुत ही बैट पैच से गुजर रहे थे, बट वो जिस कंडीशंस के अंदर उनके ऊपर वो बैट पैच आया था, वहाँ पे थोड़ी सी सीमिंग पिच थी, गेंद बल्ले पे मज़ेदार नहीं आता था, वहाँ पे इस तरह की बैकलिफ्ट जिस तरह फ़खर की है वो मुश्किल हो रही थी, यू नो, बॉल निकल जाता था, बहुत दफ़ा हमने देखा मिस कर गए, बिल्कुल लाइन ही मिस कर गए। बट या नेचुरली एक, क्योंकि इनके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि वो चैलेंज लेते हैं अपने आप को, और शोएब ने जिस तरह बताया कि पिच बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी। ये इस वर्ल्ड कप के 6 का आपको स्टैट दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के जो मारे हैं रोहित शर्मा नंबर 1 पे, डेविड वार्नर 2 पे, और फ़खर जमान अचानक 3 पे आ गए, और 2 मैचेस में नंबर ऑफ बॉल्स आल्सो, यस, 170 एंड ओनली 170, दैट्स अमेजिंग, जस्ट दिस इज अमेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्लासन इज stats। आल्सो एंड डुकॉग इज आल्सो बिलो हिम, राइट? ऐसे स्टैट्स या ऐसी इनिंग्स जब कोई आपका प्लेयर खेलता है तो मेक श्योर ये करना चाहिए कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको इतने शेल में ना डाल दें एज अ थिंक टैंक, एज अ लीडर, के आप वो उसको कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाए। 1-2 मैचेस आप बाहर बिठाएं और उसके बाद वापस ले आए ऐसे प्लेयर। सॉरी, 1-2 मैच में बिठाया, अगर वो इमाम या कोई और परफॉर्मेंस करता फिर कैसे उसको लेके आते वापस? नहीं, लेकिन ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए बिल्कुल वसीम भाई। यू मीन कि उसको बताया जाए कि तुम्हें रेस्ट करा रहे हैं? देखिए वसीम भाई, हमने देखा कि नूर अहमद ने आउट किए, ठीक है, फिर उसके बाद नूर अहमद को बिठा के उन्होंने फजल हक फरूकी को खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हो गया, ठीक है। अब आपने असेस करनी है ना कंडीशंस। अब आप ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं, आपको पता है यार यहाँ मैच जो है ये चला जाएगा 400 पे चला जाएगा, 350 से ऊपर चला जाएगा, फिर आपको ऐसे बंदे चाहिए, कन्वेंशनल क्रिकेटर नहीं चाहिए, तो आपको असेस करना है एज अ थिंक टैंक भी ऑल्सो। But also, Wasim, I think we must give credit, because Misbah was discussing this with me earlier as well. We must give credit to the Pakistani management. Absolutely. कि they इतनी disastrous innings के बावजूद भी they kept him with him. उसको एशिया कप से भी लेके गए, उनको फिर वर्ल्ड कप में भी लेकर आए. You know, it was और and there were a lot of people on social media, on public platforms जो ये कह रहे थे कि नहीं फ़खर जमान तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको ले जा क्यों नहीं, इनको ड्रॉप करें, इनको ये करें. And today, you know, he's defied अब तो बड़ा everything. आसान है ना लोगों के लिए, अब सारे कह रहे हैं कि वो कौन था जिसने इसको बाहर बिठाया, और ये बड़ा आसान हो जाता है. लेकिन जब 12-13 इनिंग्स ऐसी हो जाए, और उससे पहले भी वो कैनेडियन प्रीमियर लीग से आ रहे थे, वहाँ पे भी रन नहीं हुए, स्लो पिचें थी, फिर LPL में स्ट्रगल किया, फिर एशिया कप में स्ट्रगल किया, तो बड़ा लंबा एक पूरा पीछे ऐसा स्पेल चल रहा था. तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने उसके बावजूद बैक किया उनको, काफी हद तक कोशिश की, फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक देके फिर दोबारा ले. सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ इस तरह की जी बहुत ज्यादा हो रहे थे. अब अबरार को टीम मिला है, इनको बाहर कर उस पे भी बात करते हैं. बट वी गॉट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फ़खर जमान की, एंड ही विल टेल यू व्हाट ही डिड टू गेट बैक इनटू फॉर्म. पेशावर वो गए अपनी जो पुरानी कोचिंग, जो अपनी एकेडमी है वहाँ पर, जाके उनके अपने पुराने कोच के साथ एशिया कप के बाद. हमेशा वैसे नॉर्मली जितने भी हैं ये जैसे ही जाते हैं, पेशावर से रिजवान भी है, इफ्तिखार है, ये वहाँ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये मैंने नहीं देखा इनको 1-8 दिन का रेस्ट करते हैं और फिर ये शुरू हो जाते हैं. ये क्रिकेट से दूर नहीं रहते, तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उस पर काम किया. और मलिक को भी पता है कि वो नॉर्मली किस तरह उन्होंने नाम लिया, आफ्ताब, वो ज़ल्मी जो है पेशावर ज़ल्मी, उसमें भी जो है वो हैं, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. आई थिंक ऐसे लोग ज़रूर, उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होनी चाहिए, और ऐसे जितने लोग हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए, बजाय हम बाहर देखते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को होना चाहिए. फील्डिंग कोच भी बहुत फील्डिंग कोच भी बहुत अच्छे हैं. दूसरी एक और चीज़ है, हम
अभी सब बात कर रहे थे कि जी उनको इतने टाइम से फेलियर आ रहा था, वो फेलियर उनका फॉर्म वाला नहीं था जो मुझे लगता है, वो उनकी इंजरी का था। तो हमें जिस चीज़ पे इन्फोसाइज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए। शाहीन के साथ इशू हुआ, एहसानुल्लाह के साथ हुआ, नसीम शाह के साथ हुआ, फ़खर के साथ हुआ। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि 5 साल पहले रोमान रईस के साथ हुआ, वो अपने बहुत सारे लोग खुद ही कराता है, बहुत सारे लोगों से पहले हसन अली के साथ हुआ। तो हम लोग क्यों नहीं अच्छे लोगों को यहाँ पे जो है जो एलिजिबल हैं, So this is a जिनको very- समझ है। एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। I know, कोई see- भी चेयरमैन आए सबसे पहले फोकस इधर करे, सबसे पहले लीव अ लेगेसी, ताकि याद करें कि ये चेयरमैन आता है, ये एक सिस्टम बना गया, ये एक बेस्ट मेडिकल पैनल हमें दे गया, जो कि हमारे बच्चे आगे से इंजर भी हो गए तो रिहैब बताएंगे, इनको बताएंगे क्या से ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पे जाना है, अपनी अगर ऑपरेशन है तो किस मुल्क में जाना है, क्या करना है। अब जो आपका ये पूरा सिस्टम बने एक आपके NCA में या जो भी आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनके आगे से कॉन्टैक्ट्स हो। इंग्लैंड का जो बेन डॉक्टर है, नी स्पेशलिस्ट या ग्रॉइन स्पेशलिस्ट या शोल्डर स्पेशलिस्ट, उनको और पेरोल पे रखे, पैसे तो है ना पीसी की पास पर। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने चाहते नहीं जाना। चीज़ भी है वसीम भाई, देखें कि उस बंदे ने पाकिस्तानी था ना, क्या तो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी काम करने की। अब हमारे जो बाहर के लोग हैं यहाँ तो फिर 10 महीने रहें, काम करें हमारे प्लेयर्स के साथ। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने बाहर से सीधा टीम को ज्वाइन करना है टूर पे, देन व्हाट्स द पॉइंट? वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक दैट परहैप्स इज, एक तो ये वाला पॉइंट तो आपका बहुत सॉलिड है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का हमारा अपना एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए था, बट दिस वन आल्सो जिसके लिए इट्स लाइक एनी अदर जॉब। या आपको साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर इंस्टेंस, उसमें से 2 महीने आपकी छुट्टी है, आपने जब भी लेनी है, इन बिटवीन वो 2 महीने कटा लेंगे, व्हाटएवर दैट वर्क। ये नहीं कि टूर मुक्का तुसी गए, टूर शुरू है तुसी टूर थे आगे। That can't work. अगर ऐसा करना भी है वसीम भाई, बाहर के लोग लाने हैं तो ऐसे लोग लेके आए जो हमारे लोगों को ग्रूम कर सकें, एकेडमीज में रखें उनको, हमारे कोचेस को डेवलप करें, हमारे टूर ना सिस्टम हो को पाकिस्तान का, वो अपने कोचेस को ट्रेन करें आके, अपने यंग लड़कों को ट्रेन करें। Very true. अब ये पाकिस्तान टीम के साथ रहना, बारों बार आके बारों बार चले जाना, that can't be on. Yeah, that's be there for the fun part and get paid for the fun part, and then when the hard work is required, disappear. There's another thing, okay, we don't have time, but quickly, when we hire Pakistani coaches, for instance, अगर मुझे या तुम्हें कोई ऑफर आया फ्यूचर में तुझे, तो मेक श्योर करना कि मुझे कहना कि मुझे उतने पैसे दो जितने तुम मिकी आथर को दे रहे थे, मोने मोकल को दे रहे थे या ब्रैडबर्न को दे रहे थे। हमें वो रुपीज़ में आ जाते हैं, पाकिस्तानियों को क्वार्टर पैसा कर देते हैं, क्वालिटी उनको वही चाहिए जो आपको फॉरेन उसकी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस। दूसरा आपकी अभी तक डिस्कशन कभी आपने सुनी है जब फॉरेन कोचेज आते हैं कि मीडिया में सवाल हो रहा हो कि कितनी तनख्वाह है कितनी नहीं है, पाकिस्तानी जैसे ही आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल होता है, तनख्वाह के लिए। अब देखें चीफ सेलेक्टर है ना, उनकी तनख्वाह रोज़ बता रहे हैं, या कोचेज किसी की डिस्कस नहीं होती। तो हमें ये कल्चर चेंज करना है कि हम अपने लोगों के, अभी भी बात होती है तो सबसे पहले जो एक बेचारा पाकिस्तानी कोच है उस पे बात होती है। हालांकि पाकिस्तान की फील्डिंग कैचेस सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ऊपर है, ग्राफ टॉप पे है, लेकिन जैसे कोई एक आधा एशिया कप में कैच छूटा तो हमने फौरन अटैक कर दिया उस पे, आफ्ताब पे। Very unfortunate. We're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, we'll talk more about this and some other aspects of the game. Don't go away. Keep watching his Sports and the Airways app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Airways app, and I've got 4 very fresh people in the studio with me. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the absolutely dashing and looking very happy, fully rested and nahado ke flesh Mr. Wasim Akram. मैंने और मोइन भाई ने ना ब्लैक कॉफी की ड्रिप लगवाई है। ड्रिप लगवाई हुई है। Let's now talk about the captain. Babar Azam today looked really fantastic, very fluent in his innings today, Wasim. And just आप कह रहे थे कि he had a role and he played the role really well, but there was so much. It looked like a different Babar Azam. He was he was trying to hit those boundaries, getting those boundaries. He was in control. He hit 260s today in his 50, and that was his, I think, his 4th World Cup 50 overall. But led from the front.
हिम्मत नहीं हारी जब वो 400 कर गए। यूजली भी टीम जो बैटिंग सेकंड कर रही होती है, चेज कर रही होती है, वो 400 करा के गिर चुकी होती है। मेंटली भी, फिजिकली भी 50 ओवर फील्डिंग की है इन्होंने, और उसके बावजूद जिस तरीके से बाबर ने बैटिंग की है, फ़खर की तो तारीफ हमने बहुत की, उसकी आउट क्लास इनिंग थी, बाबर रियली सपोर्टेड हिम वेल टू। Yeah, looked really good today. And Shoaib, you know, very interestingly, वो कुछ लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे वो ट्वीट किया है, बाबर आजम ने एक 6 मारा था आज, बड़ा ज़बरदस्त, वो दिखाते हैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें आप। And a lot of people credited your master class of spin bowling and how Babar was getting into trouble and how he was playing that shot. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं ना, आप देख लें, बहुत सारे लोग, ये वाला था, and the elevation, and it's a 6. And a lot of people credited that, you know, ये आप इसके बारे में बात कर रहे थे, याद है जब हम स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, और देखें उसको ये शॉट खेलना आता है, वो पेस को वो बहुत अच्छा खेलता है एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलिंग, बट दैट डजंट मीन उसको स्पिन नहीं खेलना आता, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। ही कैन प्ले स्पिन एज वेल, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बेटर आप में ज़रूर होती है, थोड़ी सी चेंजिंग करने की वो होती है। आई थिंक वो उन्होंने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, एंड वी हैव सीन कि उन्होंने जिस पे वो थोड़ा सा फंस रहे थे उस पे आज उन्होंने ऐसा बड़ा वाला छिक्का मारा। No, cleared that deck, but outstanding innings there, Misbah today by Babar. Even right from the word go, जब वो पहुंचे क्रीज पे, it looked like there was his intent, his body language is very different. जी बड़ा इम्पोर्टेंट था, स्पेशली जब अगर जल्दी विकेट गिर जाए, 400 रन लगे हुए हों, तो एकदम मोराल आपका गिरता है। उस वक्त में पॉजिटिव रहना, और जो इनिशियल स्टार्ट लिया उन्होंने, उस टाइम फ़खर भी थोड़ा टाइम ले रहे थे, जो पहले 2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी है, उससे थोड़ा सा फ्लो फिर बना है इनिंग का, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे हैं ये, और फिर ये 6। तो आई थिंक कि कई दफ़ा आप विद द फ्लो चले जाते हैं, दूसरे बैट्समैन को देख के आप कोई ऐसा शॉट खेल देते हैं, आउट हो जाते हैं, एकदम मोमेंटम आपका पूरी इनिंग का ब्रेक हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फ़खर को सपोर्ट किया है, और जहाँ मौका मिला है वहाँ पे ख़ुद भी बाउंड्रीज मारी है। आपको सपोर्टिंग रोल ज़रूर करना चाहिए ऐसी इनिंग में। आप, ये कभी भी नहीं होता कि दोनों बैट्समैन एक जैसा खेलें, अगर ऐसा करते हैं टीम का कई दफ़ा नुकसान हो जाता है। ये मैं ज़रूर, जैसे मिसबा भाई ने कहा, उससे पहले वसीम भाई ने भी बोला कि बाबर की इनिंग्स जो थी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी फ़खर की थी। नो डाउट हमें फ़खर का वो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ऊपर नज़र आ रहा था। आई वॉज बैटिंग विद फ़खर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच हो रहा था जिम्बाब्वे में, ट्रायंगुलर सी, तो वी वर चेजिंग अराउंड 190 रन्स, हमारे ऊपर से 3 आउट हो गए जल्दी। सो आई वॉज बैटिंग T20 में 190 वी वर चेजिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल मैच था। तो वहाँ पे फ़खर वाज हिटिंग बाउंड्रीज, ऑल आई वाज डूइंग इज जस्ट गिविंग हिम द स्ट्राइक। मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 का था, सोचे कि 3 आउट भी हो गए हुए थे, बट द वे ही वाज बैटिंग, तो वो चेस कर गए हम लोग वो वाले रन्स। तो आई थिंक उतनी ही इंपॉर्टेंट बाबर की भी इनिंग्स थी जितनी इंपॉर्टेंट फ़खर की थी। ये एक स्टैट हमारे पास मौजूद है, फास्टेस्ट सेंचुरीज का वर्ल्ड कप के अंदर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। लुक एट दिस, फास्टेस्ट सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो फ़खर ज़मान हैज़ गॉन राइट ऑन टॉप ऑफ दैट विद 63 बॉल्स पे आज उन्होंने खेली है अपनी इनिंग्स। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये सलीम मलिक के पास था 1987 से। इमरान नज़ीर बिहाइंड हिम 2007 में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 1987 में ही जावेद मियादाद ने एक बड़ी शानदार इनिंग खेली थी 96 बॉल्स की, एंड अब्दुल्ला शफीक देयर आल्सो विद दिस ईयर्स इनिंग्स दैट ही प्लेड। बट लुक एट दैट, फ़खर ज़मान गोज राइट ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग। बट अगेन वेरी आपकी बात सही है, व्हेन यू हैव अ बैट्समैन ऑन द अदर एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्स यू, यू कैन रियली गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड विद दैट कर ले हमने जो करना है। जूडो कराटे करेंगे आप मेरे साथ? नीड टू वे फॉरवर्ड, सेगमेंट आ गया। द वे, इट्स टाइम फॉर द वे फॉरवर्ड हो रहा है। सो हु डू आई आस्क द वे फॉरवर्ड? इन्हीं में मैं ना ज्यादा रेडी वसीम भाई, गुलकन, इट बिट गुलकन। I know. I had to. Wasim, what's the way forward for New Zealand now? They have too many injuries, too many issues. Starters' way forward is to just play extra fast bowler, guys. Simple. You guys have a good fast bowler, okay? You have a couple of injuries. Jamieson is there, and play him against any other team. He's a tall guy. He will generate extra bounce in grounds पे, छोटी grounds पे। यही टीम खिलाएं अगला मैच भी। या हमारे लिए तो आइडियली तो यही है कि यही टीम खिलाएं। मैं उसमें बात करनी है, उस पर मज़ीद बात ना करें, उस पर बात करनी है। Okay. ठीक है, यही है, दिस इज द वे फॉरवर्ड।
ये और मैं पूरी रात लग कर तनु गल करा भाई मूड तो ताड़ा Scenario लग रहे हैं, इतने उजड़िंग लग रहे हैं आप, जरा क्लोजअप देखिएगा वसीम भाई का, उजड़िंग मुकम्मल तौर पे उजड़िंग सा चल रहा है। Fine. किसी ने बल्कि ट्विटर पे भी भेजा भी है कि इनको प्लीज ब्लैक कॉफी पिलाई जाए, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट वसीम, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस टू यू नाउ। What is the scenario for Pakistan going to the semi-final? You have this all Yes, really I have figured out. all figured it out. I didn't, Mazhar did, but I can read it for you guys. Pakistan best scenario to qualify for the semi is Pakistan beat England and Sri Lanka beat New Zealand, or Sri Lanka versus New Zealand is washed out and Afghanistan lose one game Out of and their their two. net run rate should stay low. Yeah. मतलब काफी complicated है, but that's So we have to talk about अफगानिस्तान के अगले दो जो मैचेस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका से। जी So they are going to be tough games right there. Well, yeah, both tough games for them. Both are good sides, and Afghanistan is again 8 points. They will give their 100% because they can see they have a chance to qualify for the semi-final. That'd be a massive deal for them. That will be a brilliant story for the World Cup. Yeah. अगर उनके मतलब की पिच मिल गई, they are going to give tough time to भी these जो two उनकी big प्रॉब्लम teams. थी पिछले कपल ऑफ इयर्स में जो हमने देखी इस लेवल पे आके वनडे क्रिकेट में, मिडिल ऑर्डर थी, बैटिंग स्पिनर मिडिल ओवर में पकड़ लेते हैं उनके स्पिनर। अब वो तीनों लड़के कप्तान उनका बड़ी कंफर्टेबल बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि दे बिलोंग एट दैट टॉप लेवल। Yeah, they do. It'll But be वो 300 के ऊपर ना जाने दें। Yeah. बस 300 के ऊपर जाएंगे then they will be tested. Yes. But look, let's not discount that because उन्होंने हमारे खिलाफ भी तो 350 रन किए हुए ना। So let's not बेंचमार्क तो सेट किया हुआ है, लेकिन मतलब लेकिन हमारी बॉलिंग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, अभी भी स्ट्रगल कर रही है। बट जिनके साथ उनके मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनकी बॉलिंग अटैक्स जो हैं वो इन फॉर्म है। They will test them. They will definitely test them. अफगानिस्तान की बॉलिंग भी तो एक एक्स फैक्टर है ना। वो बॉलिंग ऐसी है कि वो किसी भी टॉप टीम को इतने आराम से 300 नहीं करने देगी। तो Correct. बहुत बुरा दिन उनका होगा तो फिर करने देंगे, अदरवाइज वो टफ टाइम देते हैं। क्वालिटी स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक चैलेंज होगा टीमों के लिए। Well, so the semi-final spot for Pakistan, that is still a very open and very, very possible scenario, and we're hoping for the best. And with that, we're going to take a break here in the Pavilion, but when we come back, yaad rahe, it's hashtag Ask the Pavilion coming your way. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion, and it's hashtag Ask the Pavilion time. And let's start off straight away. सबसे पहले सवाल ये आ रहा है जनाब M अरसलान, MHD अरसलान आपका हैंडल है ट्विटर का। आप कह रहे हैं it seems like we are left with no spinners. We can't rely on Ifti Mania and Agha if we reach semi or even against last game against England. Why can't be Shadab, Mir or Nawaz, Osama Mir or Nawaz to be ruled out, and we go in with a regular spinner like Abrar? This is a good point that you bring up. This is a ये good काफी- point, but somebody has to get injured. आप क्या समझ रहे हैं कि उनके घुटनों पे हम थोड़ी मार So रहे हैं? Wasim, here's the thing. There's a thing that Shadab has a concussion, and that's why नहीं, he's but staying we out. don't know. It's just अभी ऑफिशियल की पढ़ी है किसी ने स्टेटमेंट पाकिस्तान की? No, there's no official. नहीं ना पढ़ी। There's no it means they all are fit. तो मेरा आप मतलब है replace ऐसी कि कर ही उन्होंने नहीं गोडियां सकते। तो थोड़ियां मार के फिर किसी और नु ले, ये जो फिट हैं जो स्क्वाड में है वो हैं, अगर So, कोई इंजर होता तो अभी तक ले चुके होते वैसे वो। क्या है कि आज का जो मैच था उसमें शादाब was available for today's We match. don't know. No one knows. Yeah, that's what I'm saying. So if we are to अगर तो ये सिनेरियो लिया जाए कि yes he's injured, he's got a concussion, but they're keeping him there because maybe कि अगले मैच तक वो सही हो जाए. अब Is हमारे that- पास चॉइस ही चॉइस ही नहीं कोई है नहीं है। तो There you go. Why not? It just it's why not, right? जाहिर है, मेरे ख्याल में अगर वो फिट हो जाता है तो फिर आगा की जगह आप उसको खिला सकते हैं। नंबर 7 पे आपकी बैटिंग भी आ जाएगी। You can still play with So your I think that's why they're keeping him in the squad, and they don't want to let him go and bring in Abrar because बट उसके कुछ टेस्ट वगैरह तो हो रहे होंगे क्योंकि कंकशन जब आपको होता है तो उसके टेस्ट होते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दोस टेस्ट, यू हैव टू पास दोस टेस्ट। और अब वो पता ही नहीं, कोई आप क्लैरिटी में से नहीं है, किसी को कोई कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। has anyone suffered here a concussion? Yes, You have suffered a concussion. Yes, What I happened? have suffered. I got hit by the ball in New Zealand while running. मेरे यहाँ लगा था और कंकशन में जो था, जब मैं बॉल लगा है मेरा, उसके बाद मैंने एक रन लिया। Right. मैं मतलब मेरा सर ऐसे चकराया, मैं बाहर गया हूँ, बाहर जाके उन्होंने मुझे Stretcher जो पे लिटाया? फिजियो बेड था उस पर लिटाया। आई स्वेयर आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं आई पास्ड आउट
तो मैं उठा हूँ 3 घंटे के बाद, और मुझे ऐसे लगा कि मैं 1 मिनट बस आंख बंद की थी। Right. और उसके बाद भी मेरे जो टेस्ट हुए, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ तो मुझे ये आइडिया है, लेकिन वो बहुत सवियर किस्म का था वो। आई हैड टू टेक अ ब्रेक, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 2 months। मैं आई वाज जस्ट अवे फ्रॉम द क्रिकेट, आई वाज अवे फ्रॉम द क्रिकेट। बहुत मुश्किल था, ऐसे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा वॉक करता था तो चक्कर आते थे, मतलब बेड पे आप जो है दोबारा से पड़ जाते हो। तो अगर, लेकिन गुड थिंग दैट वी हैव सीन हिम, जब उनको वो लगा या जब थ्रो करते हुए वो गिरे, ही वाज सिटिंग इन द डग आउट। तो मतलब वो मतलब सवियर वाला नहीं लग रहा, तो शायद इसी वजह से उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया। बट अगर इफ़ ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम, जो कि हमारा डिसाइडर है टू क्वालिफाई इन द लास्ट 4, immediately replacement लेना चाहिए. If he's not available. It has to be tomorrow or today. Yeah. If he's not fit, If you it's should find not, out. yeah. और जनाब वाजिद अली चट्ठा, वाजिद अली चट्ठा आपका हैंडल है वाजिद चट्ठा। आप कह रहे हैं no disrespect to Shoaib Malik, but is it appropriate to have a person in your panel who still happens or wishes to be a contender of playing 11? तो आपने कहा था ना कि मैं अपने आप को प्लेइंग 11 के लिए वो करता हूँ, तो What is the question? The question is कि क्या ये appropriate है कि ऐसे जब उन्होंने जब खेलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इतने इम्पोर्टेंट पैनल भी उसका हिस्सा होना चाहिए? Why not? I think I just don't understand why. शोएब ने like You bring a lot of value to this. खेली, Yeah. of course. Yeah. क्रिकेट So खेली and then चट्ठा साहब है। जी, आप भी खेल रहे हो। चट्टा साहब आया, भाईजान तैयार हो जाओ, भाईजान तैयार हो जाओ, चट्टा साहब। चट्टा साहब को ये कह रहे हैं कि आइडिया था कि प्रेजेंट क्रिकेटर आएगा पैनलिस्ट में, तो वो बता सकेगा कि आजकल का क्रिकेटर क्या सोचता है, किस तरीके से उसकी इसलिए वहाब माइंडसेट था चलता है। पहले, वहाब की जगह फिर मलिक है। मलिक है, मलिक की जगह अभी भी मलिक है। अभी भी मलिक है, but खुश हो चट्टा साहब? Okay. Rizwan Jafar, Riz980 आपका हैंडल है. Don't you think Haris Rauf has been given enough chances and should be replaced by some backup player, as he is getting hammered by each time quite easily? So again, he can't be replaced. We don't have any backup. क्या नाम है? रिजवान जाफर. रिजवान साहब बैकअप प्लेयर आप ही बता दें, कौन सा आपने अपनी जेब में रखा है, हमें दे दें जो हमें नहीं पता. वही बात, वही ना. आई नो यू क्रिकेट लवर्स, आई अंडरस्टैंड, आई लव योर पैशन, आई डू एंजॉय योर पैशन ऑल द टाइम, बट कोई अकल भी थोड़ी यूज़ कर लिया करो. Okay. This is a message from Swarnabha Mukherjee. Swarnabha आपका हैंडल है ट्विटर का. आपने कहा है कि प्लीज विश विराट on his 35th birthday and best of luck for tomorrow's match where he might score his 49th century. Happy birthday, Mr. Virat Kohli. You are an exceptionally outstanding cricketer, and we wish you all the best, and we hope that we are all gifted or blessed by seeing a lot of centuries that you score around the world, but not against Pakistan. Everyone else but us. But happy birthday, really, really. वो सबसे ज़्यादा करता तो वो सबके अगेंस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे अगेंस्ट. साढ़े लिए कोई खास होता बंदोबस्त है. No idea. But best of luck, and tomorrow's game is going to be a fantastic game. We're looking forward to that. Sayyid Faisal Ali _102. For all experts, my question is why Azam Khan has not played in this World Cup. You could have kept Rizwan as batsman, but have Azam instead of Imam when Fakhar was not playing. Then fireworks won't be a problem. You surely have Ifti, Azam and Fakhar. हाँ जी, सैयद फैसल अली. वो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन जवाब दें. सिलेक्शन कमेटी थोड़ी. नहीं, मगर चलो क्वेश्चन का But you were sitting there. कप्तान से और सिलेक्शन कमेटी से और टीम मैनेजमेंट से ये सवाल होना चाहिए. नहीं तो इन्होंने सवाल क्यों लिया है? सर जरा पूछे ना आप. मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया. आपको जवाब मिल गया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है. फैसल शर्जील तारिक आपका हैंडल है ट्विटर का फैसल एस तारिक, और आप कह रहे हैं माय क्वेश्चन टू एंटायर पैनल, स्पेशली मिसबाह उल हक. वी डेस्परेटली नीड अ जेन्युइन फास्ट bowling all-rounder. Since Fahim Ashraf hasn't been a worthwhile investment, what options do we have? Is Amir Jamal good enough? Misbah, maybe you want to shed light on this, please? जब वो खेला है काफ़ी अरसा हो गया और उसने पोटेंशियल शो किया है, तो आपको इस लेवल पे आके वसीम भाई बेहतर बता सकते हैं. जब अब्दुल रज़ाक आए थे, अज़हर महमूद आए थे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. Right. एक चीज़ आपके पास नहीं है तो जाहिर है उसको चांसेस आप कंटिन्यूसली देंगे तो फिर वो जाके कहीं आपको डिलीवर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर
ऐसे बंदे को रखना चाहिए टीम के साथ और उसको रेगुलर उस पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और उनकी बैटिंग पे भी काम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इवन नीचे कोचेस को कहना चाहिए कि उनको जहाँ मौका मिले नंबर 6 पे बैटिंग मिलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में ताकि वो पाकिस्तान के काम आ सके। वसीम अकरम, आपके लिए सवाल आया है हैदर अली। हैदर आपका ट्विटर हैंडल है हैदर 1568। हैदर अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम हैदर। I am 43 years old, a bit fatty and can't run fast. But I am gut feeling that Pak needs my bowling abilities and I can bowl like you. Please guide me the way forward so that I could work hard for 4 years and make debut at the age of 47. भाई सवाल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। पोलो तो नहीं बनाया? नहीं, देख लो थोड़े, मैं इसलिए no, go back. There you go. Yeah, Heather Ali, I'm 43-year-old, bit fatty, can't run fast. ते और की करना है? कुछ तो हो नहीं रहा तेरे को हैदर। I think you're done, buddy. Other profession. एक बंदे ने इतनी मोहब्बत से सवाल पूछा था। He bowls like you, by the way. He was like me, na? He's 43. Balls like you. Balls like you. He bowls like But you. he's 43. He said he's bit fat. He can't run. तो he says कि मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मैं मेहनत करूं 5 साल में हैदर आप ऐसा करें में डेब्यू कर लूं। Honda 70 ले उधर ते bowling करें। Well, Heather, there you go. So I think it's a little late. You could spend time, play a lot of good club cricket, enjoy your cricket, and watch a lot of cricket and watch the Pavilion. And send us your questions, somewhat different because you know how you'll get an answer then. kodababa.com. अभी बताया भी था ब्रेक से पहले। All right, guys, we're going to take a break here on the Pavilion. Break ले लेते, break ले लेते। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Hour by Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. Break पे जाने से पहले हम लोग #AskThePavilion का सिलसिला कर रहे थे. And right now, let's take a look at what we have in store for you tomorrow. कल आपके लिए एक और बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा मैच है ये. It's India versus South Africa. दोनों टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं. But this is going to be really a game worth watching because India, which is undefeated and unstoppable right now, are going to finally be heading head to head with South Africa, which is also one of the toppers on this table. They're a fantastic team, great form for them. So this is going to be the game. हम लोग आपकी खिदमत में कल 12 बजे जो है वो दोबारा टेलीविजन की स्क्रीन पे हाजिर होंगे और 1:30 बजे आपको बराह रास्त ये मैच दिखाने के लिए लेकर चलेंगे. And with that, gentlemen, जास्ते Just. All right, Shoaib Malik, thank you very much. Have a good evening. Thank you, Moin. Outstanding work. Thank you, Misbah, for all your support. Thank you very much. And thank you, Wasim, for the gems like Gulsun and Chichku Chichkanderiyan, Do Teriyan, Do Meriyan. आखिरी वाला एक रहता है एक बेट नहीं ये इस वक्त एक तो क्लोजिंग मैंने करनी है तू विच मेरे जलसे दे पथराव किए जा All right, let me conclude that. चिचकु चिचकंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां, and with that, good night.